Welcome to Enlight Education Videos. My name is Ankit Patel and today we are going to study about our skeletal system, right? And in our skeletal system there are two parts. We know that there are 206 bones, isn't it? And our whole skeletal system is divided into two parts. What are they? One is axial and another one is appendicular, right? So let's study about axial skeleton first, which is having 80 bones in it. Now what are these 80 bones? Among axial skeleton, the first one is skull. Understood? And another one is actually a mix of three kind of bones, right? That is, okay, it is a group of three kind of bones, that is ribs, plus vertebra, plus sternum. Understood? So this much bones, this much, and in this two parts, whole axial skeleton is divided. Understood? Now let's see what are the different parts in skull. Skull is again divided into three parts, and they are first is cranium. Cranium includes all those bones which are covering our brain. Then second one is facial bones, and last are others, or it can be called as associated bones, associated skull bones, right? Now let's see what are the bones that that belongs to cranium, right? We know that our brain have different lobes like frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, right? So accordingly, it is also having different kind of bones. चलो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे हम लोग? Frontal. Cranium में frontal. Yes, obviously cranium but frontal. तो कितने हैं frontal bone? Just one. Only one frontal bone is there. Then two parietal bone. Another one is two parietal bones. Next one is, चलो पीछे कौन सा बोन है? पीछे ऑसिपिटल बोन है ना. लोब में भी ऑसिपिटल लोब आता है ना पीछे, दो कानों के साइड, और टेम्पोरल लोब होता है ना ब्रेन का, तो टेम्पोरल बोन, वहां पर भी उनके लिए दो अलग अलग बोन होते हैं, दे आर कॉल्ड टेम्पोरल बोन्स. अंडरस्टूड? ये तो सब आजू बाजू ऊपर हो गया. अब नीचे के साइड, तो फ्रंटल बोन जहां पर खत्म होता है यहां पर आके, वहां से आगे शुरू होता है स्फिनोइड बोन, राइट? So here you can see a sphenoid bone, right? And its location also in the given picture. This sphenoid bone just start from where the frontal bone ends below the brain. Brain के नीचे जहाँ पर frontal bone खत्म होता है, वहाँ से sphenoid bone आगे शुरू होता है. And this sphenoid bone is actually separating our nasal chamber from our cranium. Understood? तो cranium और nasal chamber के बीच में होता है. It is forming septa between our nasal chamber and brain. Understood? So that is called sphenoid bone. Just one sphenoid bone is present. और अगर frontal bone को नीचे से देखते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हो, frontal bone को अगर हम लोग नीचे से देखें तो वहां पर बीच में एक छोटा सा बोन होता है, which is elongated at the from anterior most region to the posterior region. ठीक है? और sphenoid bone को टच करता है वहां पर at the posterior end of that bone. That bone is called ethmoid bone. It is also one in number. अब चलो कितने बोन्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bones of cranium. Understood? फेशियल बोन में सबसे पहले तो यहाँ पर जिसके वजह से हमारे यहाँ पर चीक फूले हुए होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड zygomatic bone.
How many zygomatic bones are there? Two zygomatic bones are there. After that, zygomatic के नीचे यहां पर कौन सा बोन होता है? मैक्सिला। कितने होते हैं? 2। There are 2 maxilla bones और maxilla bone के नीचे ही हमारा upper jaw होता है, मतलब upper jaws are part of each maxilla bone। ठीक है, 2 upper jaw है, लेफ्ट राइट, दोनों अपने अपने maxilla के पार्ट है। अंडरस्टूड? एंड 1 मैंडिबल। देखो यहाँ पर भगवान ने पार्शियलिटी कर दी, एक ही मैंडिबल को पूरा लोअर जॉ दे दिया और मैक्सिला को आधा आधा ही जॉ दिया, isn't it? And mandible is the only movable joint in our skull। हमारे पूरे स्कल में मैंडिबल अकेला ही मूवेबल बोन है। अंडरस्टूड? मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, चलो अभी नाक पर चले जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड नेजल बोन। दोनों जगह का एक नेजल बोन। ठीक है, अब दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में सेप्टा फॉर्म करने के लिए और एक बोन होता है। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड गोमर बोन। कितने होंगे? एक ही होगा ना। अब गर्ल्स लोग के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन होता है, और क्या होता है सबसे पावरफुल वेपन? टीयर्स, है ना। तो उसके लिए लैक्रिमल ग्लैंड चाहिए, और लैक्रिमल ग्लैंड का भी एक अलग से स्पेस होना चाहिए जहां पर वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए भी बोन्स है, जो उनको लैक्रिमल बोन बोलते हैं। कितने लैक्रिमल बोन्स हैं? दोनों वेपन्स के लिए 2 बोन्स। उसके बाद चलो थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। तो अंदर में जो अंदर का नेजल चैम्बर है उसको कवर करने के लिए जो बोन है, दैट बोन इज कॉल्ड इंटरनल नेजल कॉन्चा। इंटरनल नेजल कॉन्चा। अंडरस्टूड? कितने? वापस दो। अब एक बोन रह जाता है जो हमारे पैलेट, अपर पैलेट और हमारे नोज को साइड से कवर करता है, एंड इट इज ऑफ एल शेप। अगर आप सामने से वो बोन देखते हो तो आपको एल शेप का मिलेगा, ऐसे 2 बोन। और अगर आप ऐसे साइड में से देख रहे हो तो आपको कुछ और ही दिखेगा। ऊपर कोई छोटा सा सर्कुलर शेप होता है, नीचे बड़ा सा सर्कुलर शेप, कुछ ऐसा होता है। अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन। What is it called? Palatine bone। चलो गिन लेते हैं कितने बोन हो गए यहाँ पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अंडरस्टूड? चलो अभी एसोसिएटेड बोन्स में चले जाते हैं। एसोसिएटेड बोन्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से बोन्स देखेंगे? जो हमारा टंग का फ्लोर बनाता है, दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। और ये हायोइड बोन हमारे स्कल का एंटीरियर पार्ट का सबसे लास्ट पार्ट। अंडरस्टूड? एंटीरियर बोलेंगे वेंट्रल साइड का सबसे लास्ट पार्ट, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर वेंट्रल region of skull is hyoid bone। Understood? और हमारे कान में हमारे बॉडी के सबसे छोटे बोन्स होते हैं, they are called ear ossicles और ear bones। और ear ossicles में भी 3 बोन्स होते हैं। कौन से? मेलियस जो हैमर शेप का होता है, देन इंकस जो एनविल शेप का होता है, एंड लास्ट वन इज स्टेप्स जो स्टरप शेप का होता है। स्टरप मतलब मालूम है? नहीं मालूम? बोल देता हूं मैं स्टरप का मतलब क्या है। घोड़े पे कभी बैठे हो आप लोग तो उसमें पैर रखने की जगह होती है ना, तो ऐसे 3 बोन्स हमारे सबसे छोटे छोटे। कितने ईयर साइकिल्स हुए?
3 तो यहाँ पर मैंने दिखाया ना आपको, लेकिन 3 सिर्फ एक कान के, तो 2 कान के हो गए बन जाएंगे टोटल 6 बोन्स। अंडरस्टूड? तो एसोसिएटेड में कितने हुए? 7। तो स्कल में कितने बोन्स हुए? चलो ऐड कर दो, 29 बोन। कितने हो गए? 29। अंडरस्टूड? तो ये हो गया स्कल बोन्स। अंडरस्टूड? 8 बोन्स ऑफ क्रेनियम, 14 बोन्स ऑफ फेशियल बोन्स एंड 7 एसोसिएटेड बोन्स। अब रिब्स देख लेंगे, रिब्स में कौन से बोन्स हैं। रिब्स देखे उससे पहले चलो स्टर्नम भी हम लोग देते हैं। स्टर्नम में कितने बोन्स हैं? स्टर्नम के कितने सारे बोन्स हैं वो याद रखना बहुत ही हार्ड है। इट इज वेरी वेरी हार्ड। कितने बोन्स होते हैं स्टर्नम में? जस्ट 1। अंडरस्टूड? वर्टिब्रा में कितने बोन्स होते हैं? तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्टिब्रा में कौन से बोन्स होते हैं। ठीक है, चलो वर्टिब्रा में 4 टाइप के वर्टिब्रा होते हैं। कौन से? तो सबसे पहले जो वर्टिब्रा गले में होते हैं दे आर कॉल्ड सर्विकल और सर्वाइकल। सर्विकल वर्टिब्रा दे आर 7 इन नंबर। इतने छोटे से गले में छोटे छोटे 7 सर्विकल बोन्स होते हैं। अंडरस्टूड? उसमें भी फर्स्ट को बोलते हैं एटलस एंड सेकेंड को बोलते हैं एक्सिस। अंडरस्टूड? देन फिर सर्विकल के बाद हमारे थोरैक्स में जो वर्टिब्रा होते हैं उसको बोलते हैं thoracic vertebra. How many? 12 thoracic vertebra are there. उसके बाद हमारे एब्डोमेन में जो वर्टिब्रा होता है उसको क्या बोलेंगे? लंबर। How many? 5 lumbar vertebra are there. Then sacrum, सिर्फ एक। कॉकिक्स, कॉकिक्स में भी एक ही बोन है। There is only one bone in sacrum and coccyx. अब पूछो कि सर ये फॉर्मूला कैसे हम लोग याद रखेंगे? 7 12 5 1 1। तो 7 + 5 क्या होता है? 12 होता है। अंडरस्टूड? तो 7 12 5 1 1। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला 7 12 5 1 1 याद रखो। अंडरस्टूड? सबसे पहले सर्विकल बोन्स, देन थोरैसिक बोन्स, लंबर बोन्स, सैक्रम एंड कॉकिक्स। ये सैक्रम जब हम लोग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये 5 बोन्स होते हैं। अंडरस्टूड? ड्यूरिंग आवर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिस 5 बोन्स यूनाइट टू ईच अदर फॉर्मिंग जस्ट one bone. Similarly with coccyx also there were 4 bones and they get unite to form one bone. और इसीलिए हमारे बॉडी में टेल नहीं होता है because this sacrum and coccyx are shortened one. Understood? They are not grown with other vertebra during our embryonic development. That's why we don't have tail. Understood? चलो next है, so this is about vertebra. Next one is ribs. Ribs में देख लेते हैं। चलो ribs में कौन से ribs होते हैं? तो सबसे पहले है true ribs, जिसमें फर्स्ट पैर से लेके 7th पैर तक आता है। Understood? They are articulated with thoracic vertebra. They are articulated with thoracic vertebra through cartilage. At the posterior side. Understood? Dorsal side. These true ribs are articulated to the thoracic brain at the dorsal side and at the ventral side. पूरा ऐसा गोल घूम के ventral side में आके sternum से articulated होते हैं again with cartilage, through cartilage. Understood? So at ventral side they are articulated with sternum through cartilage and at dorsal side they are articulated with thoracic vertebra. Understood? Through cartilage. Next, false ribs. कौन से ribs को false ribs बोलते हैं? 8 9
एंड 10th पेयर। अगर कभी आपने किसी आरती में ऐसा देखा होगा तो कुछ लोग ऐसे खुद थाली पकड़ के आरती करते हैं, तो कुछ लोग पीछे से, अंदर में जा नहीं सकते भीड़ में, तो पीछे से ऐसे हाथ, जो लोग आरती करते हैं उसके हाथ टच कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी फॉल्स रिब्स भी कुछ ऐसे ही है। You can see in the diagram that these 3 pairs of ribs are not articulated with sternum, but they are articulated with 7th pair. Isn't it? 7th pair में articulate हो जाते हैं. Understood? And last two pairs में जितने thoracic vertebra है उतने ribs हैं. How many thoracic vertebra are there? 12. तो उस हिसाब से 12 pairs of ribs हैं. Last one is floating ribs. इसमें कौन से पैर आएंगे? 11 and 12. इन लोगों को आरती में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. They don't want to do such things. Understood? तो वो thoracic vertebra से at dorsal side they are articulated, but they don't want to articulate it at the ventral side. They don't come even to the ventral side. They don't reach even to the ventral side. वो dorsal side में ही रह जाते. Understood? तो ribs ऐसे होते हैं. चलो ribs कितने हुए? Now all these are pairs. है ना, लेफ्ट साइड के रिब्स और राइट साइड के भी रिब्स, है ना। तो 12 plus 12 24, तो 24 रिब्स हो गए। स्टर्नम तो एक ही है बेचारा। वर्टिब्रा भी कितना हुआ? 26, isn't it? और कितने हो गए टोटल तीनों मिला के? 24 plus 26 50 plus 1 51 and 29 80. Understood? और एक चीज, अगर हम लोग इसमें से सर्विकल वर्टिब्रा निकाल दे, लंबर सैक्रम कॉक्सिक्स निकाल दे, तो ये स्टर्नम, थोरैसिक वर्टिब्रा और रिब्स मिलके बनाता है रिब केज. What it forms? Rib cage. Which parts? All the ribs, thoracic vertebra and sternum. And sternum, not atlas and abscissa, and sternum. These bones are forming rib cage. Understood? आगे sternum है, साइड में ribs है, पीछे thoracic vertebra है. बस हार्ट और lungs को कोई छू के दिखाए. Understood? They are forming rib cage in which such precious organs are protected within the rib cage. Understood? तो चलो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन. स्कल तो पूरा आ गया, रिब केज भी आ गया, बाकी बचे वर्टिब्रा वो भी आ गए. अब रहता क्या है? तो लिम्स एंड गर्डल्स. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टडी अबाउट लिम्स एंड गर्डल्स. तो होल appendicular skeleton is consisting of limbs and girdles. Let's start with forelimbs, because limbs is divided into, limbs are two types, forelimbs and hind limbs. तो सबसे पहले शुरू करते हैं forelimbs से. चलो forelimbs में सबसे पहले ह्यूमरस. अंडरस्टूड? सबसे पहले ह्यूमरस. कितना होता है ह्यूमरस? वन हैंड में जस्ट वन. फिर रिस्ट बोन्स, ये दो बोन्स. अंडरस्टूड? ये जो दो बोन्स है उसमें एक है रेडियस विच इज अ थिकर वन, एंड सेकेंड वन इज ulna, ulna, whatever you say. Understood? Then तो चलो यहां तक तो पहुंच गए हम लोग. अब पाँव में पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मार्बल वाले खिलौने होते हैं ना, वैसे बोन्स होते हैं. दे आर कॉल्ड कार्पल्स. अंडरस्टूड? आपको मैं अपने हाथ में दिखाता हूँ. चलो यहाँ पर ऐसे कुछ कार्पल्स होते हैं. अंडरस्टूड? चलो
कार्पल्स कितने नंबर के होते हैं बाद में बताऊंगा मैं आपको। देन मेटाकार्पल्स आर प्रेजेंट। अब पूछो कि मेटाकार्पल्स कहां पर होते हैं, तो यहां पर नॉट इन द फिंगर्स बट ईच फॉर वन फिंगर। अंडरस्टूड? ईच फॉर वन फिंगर। तो कितने हुए मेटाकार्पल? 5 इन अ हैंड, जस्ट इन अ हैंड 5। देन हमारे फिंगर्स के लिए कितना लिखोगे आप लोग? 5 नहीं लिखोगे, क्योंकि हर एक फिंगर में फिंगर टिप्स होते हैं। फिंगर टिप्स कितने हैं? 14। ये 3 12 और इसके 2। अंडरस्टूड? तो phalanges भी कितने होते हैं? 14। So these bones are called phalanges. Not just 4 but 14. अब लिम्स कितने होते हैं एक हाथ में? बोन्स एक फोर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं? तो 30 होते हैं। ये याद रखना है आपको। इन अ फोर लिम्ब देयर आर 30 बोन्स। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लस 14 22। कितने रह गए 30 में? 8। तो 8 कार्पल्स है। अंडरस्टूड? और कितने लिम्स होते हैं? 2 लिम्स होते हैं ना, तो 2 लिम्स के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। हाउ मेनी बोन्स? 60 बोन्स। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन, हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में सबसे पहले तो आप सुल्तान वाला वो सीन याद कर लेना, ठीक है? तो सबसे हेवियर, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड फेमर। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, वन बोन इन अ लिम्ब। फिर यहां पर जैसे रेडियस और उल्ना है, वैसे ही यहां पर टिबिया and fibula. One each. Understood? फिर जैसे यहां पर कार्पल्स है, वैसे यहां पर टार्सल होता है। टार्सल्स। अंडरस्टूड? वापस टार्सल्स अभी नहीं लिखेंगे कितने नंबर में होते हैं। फिर टार्सल्स के आगे फिर से यहां पर जैसे कार्पल का मेटाकार्पल है, वैसे टार्सल का मेटाटार्सल। मेटाटार्सल भी कितने होंगे? 5। They are not present in toes, but for each toes one metatarsal is there for each toe. Understood? और टार्सल का नंबर अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। टार्सल को एंकल बोन भी बोलते हैं, एंकल, AD. Understood? It is also called as ankle bone. Then phalanges. Phalanges भी कितने होते हैं? यहां पर भी 14। Here also they are 14 in number. और एक बोन होता है जो 4 लिम्ब में नहीं होता है। अंडरस्टूड? यहां पर नी बोन नहीं, सॉरी एल्बो बोन नहीं होता है, लेकिन हमारे पैर में नी बोन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पैटेला। 1। अब गिन लो कितने हुए? तो इसके जैसा अरेंजमेंट है ना, लेकिन यहां पर एक ज्यादा है। यहां पर भी 30 बोन्स ही होते हैं इन ईच लिम्ब। तो 1 2 3 4 और 5 कितने हुए? 9 प्लस 14 23। कितने बचे 30 में? 7 बोन्स, 7 टार्सल्स और 7 एंकल बोन्स इन ईच लिम्ब। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हर एक इंसान में 2 पैर होते हैं, isn't it? कितने हुए? 60 प्लस 60 120। 80 बोन्स हो गए खत्म, 120 बोन्स हो गए खत्म। कितने बोन्स खत्म हुए? 200 बोन्स।
How many bones are remaining? Just 6 bones. Understood? लेकिन ये 6 bones में नाम ज्यादा है, so you have to remember more in this. चलो, अब यहाँ पर दो girdles है, ऐसे लिंक्स में फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब है ना, वैसे यहाँ पर भी दो girdles है। तो सबसे पहला girdle जो हमारे शोल्डर वाला girdle है उसको बोलेंगे पेक्टोरल girdle। क्या बोलेंगे उसको? पेक्टोरल girdle। पेक्टोरल girdle में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी दो पार्ट है, एक डोर्सल साइड में ट्रायंगुलर पार्ट है और एक वेंट्रल साइड में कॉलर बोन जैसा है। अंडरस्टूड? तो दैट व्हेन द ट्रायंगुलर पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द dorsal region is called scapula. Understood? Left and right दोनों साइड के एक बोन, तो 2 बोन्स हो गए। फिर और स्कैपुला के आगे की साइड वेंट्रल साइड में एक रॉड जैसा बोन होता है which is present at the location of collar, इसलिए उसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, बट इट्स एग्जैक्ट नेम इज क्लैविकल। लेफ्ट राइट होके ये भी 2 बोन्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो पेक्टोरल girdle में टोटल कितने बोन्स हुए? 4 आउट ऑफ 6। अंडरस्टूड? और एक चीज, चलो पेक्टोरल girdle में स्कैपुला में 2 चीज जानी बहुत जरूरी है। देयर आर 2 cavities which are present in scapula. One is called glenoid cavity. अब ये glenoid cavity क्या है? This glenoid cavity is helping in articulation of this humerus with the scapula, और यहीं पर वो ball and socket joint बनता है। Understood? So glenoid cavity scapula में होता है जहां पर ह्यूमेरस आर्टिकुलेटेड होता है। अंडरस्टूड? और एक कैविटी होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन कैविटी, जहां पर क्लैविकल स्कैपुला से आर्टिकुलेटेड होता है। अंडरस्टूड? वेयर क्लैविकल इज जॉइंड विद, और आई शुड से आर्टिकुलेटेड विद स्कैपुला। तो एक्रोमियन कैविटी एंड ग्लेनोइड कैविटी, बोथ ऑफ दिस कैविटी आर पार्ट ऑफ स्कैपुला। Understood? So this is about pectoral girdle. And last one is pelvic girdle. Pelvic girdle मेल और फीमेल में अलग अलग साइज के होते हैं। Understood? अगर कोई इजिप्शियन ममी मिला है तो वो ममी मेल का है या फीमेल का है कैसे पता चलता है? By identifying the size of pelvic girdle. If pelvic girdle is broader, then the individual will be, क्या होगा individual, male या female? Female. Very good. Then individual will be female if pelvic girdle will be broader, and if pelvic girdle is narrower, then the individual would be male. ऐसा क्यों होता है कि फीमेल में भगवान ने ऐसा पार्शियलिटी क्यों किया कि फीमेल को ब्रॉडर pelvic girdle दिया? क्योंकि भगवान ने और एक पार्शियलिटी किया है कि ओनली फीमेल कैन बिकम मदर, ओनली फीमेल हैव टू कीप एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो इन हर यूटेरस, एंड मेल कैन नॉट, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग पेल्विक गर्डल ब्रॉडर। अंडरस्टूड? तो पेल्विक गर्डल में भी 2 पार्ट है, बहुत हार्ड नाम है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वन। लेफ्ट पेल्विस एंड राइट पेल्विस, है ना? कितना डिफिकल्ट नेम है, आपको कभी भी लर्न नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो, अब ये दोनों बोन में, मतलब पेल्विक गर्डल का जो लेफ्ट पार्ट है उसको लेफ्ट पेल्विस बोलेंगे और पेल्विक गर्डल का राइट पार्ट है उसको राइट पेल्विस बोलेंगे। ठीक है? अब ये हर एक पेल्विस में 3 पार्ट्स होते हैं। Understood? The upper part that you can see in diagram right now is ilium. It is called ilium. Understood? And the ventral part of both the pelvis through which they are articulated to each other is called pubis.
and the posterior most part of these two pelvises are called ischium. Understood? So likewise, these are 206 bones present in our body.